executive. So whatever functions they are doing, idea is to ensure the governance. ठीक है, जो आप लोग जाके करोगे as an executive, that will be also called as governance. As a government, whatever they are doing to do the best of the people is called governance. Whatever is written in the preamble, ठीक है, क्या लिखा है? Justice, liberty, equality, fraternity. What is that? Through those particular you can say objectives of the preamble, they are trying to achieve governance. यानी देश हित में, सबका भला, सबका विकास, सबका भला kind of thing. ठीक है, so this is what is called the idea of governance. तो in these classes what we will be doing is, as such देखो syllabus mentioned है. So first we will be understanding what exactly is governance. Then what are the characteristics of governance? We'll understand what is good governance. We'll see who are the stakeholders involved in the governance. जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आप लोग जब एग्जीक्यूटिव बनोगे या कोई लेजिस्लेचर का पार्ट है तो वही गवर्नेंस करता है, लेकिन नहीं, गवर्नेंस आपके एंड से भी हो जाती है. गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स आप भी हो जाते हैं. ठीक है, तो टू वे प्रोसेस अभी हम देखेंगे. देन एनजीओस का रोल है, एसएचजीस का रोल है. तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स. देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड देन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हाई द गवर्नेंस इज नॉट वेरी सक्सेसफुल. क्या इश्यूज है इंडिया में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है गवर्नेंस को लेके. लेट अस से गवर्नमेंट वांट्स टू डू, जैसे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में फिर से न्यूज में 2-3 दिन से. व्हाट इज ऑल अबाउट? ठीक है, लोन दिया, माइक्रो लोन्स दिए, कोलेटरल फ्री लोन्स दिए, लो इंटरेस्ट लोन्स दिए. ठीक है, ऐसे ही कुछ दिया. अब कहा जा रहा है इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम. तो हम देखेंगे कि वो कौन सी पॉलिसी में आती है एंड एक्जैक्टली वेदर इट इज एबल टू गवर्न द पीपल और नॉट. सो ऑल दीस काइंड्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंश्योरिंग गवर्नेंस. यानी गवर्नमेंट जो भी कुछ टास्क करती है जिससे लोगों का बेनिफिट हो, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस. ठीक है, सो मोर और लेस ये जो पहली 10 स्लाइड्स हैं इसको आप लिखते जाना या पॉइंटर्स बना लेना. इसके बाद की स्लाइड्स सब आपके प्रहार में मटेरियल से ही हैं, एक्जैक्टली वही है, बट आई विल बी डिक्टेटिंग, काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग. डिक्टेशन नहीं दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वी हैव जस्ट 3 क्लासेस. टॉपिक्स बहुत सारे हैं, क्लासेस 3 है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 30 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो कि आपके सिर के ऊपर से निकले कुछ भी कंफ्यूजन हो. डू आस्क. ओके, सो दिस इज कॉल्ड what is governance. देखो, technically if I ask you what is governance, can you give me any definition, or government of India or your constitution talks about any definition? There is no universal definition of governance. No universality in the definition. अब South Korean government is saying we are giving medical aid to our people. So we are giving medical aid to our people. We are giving all kinds of benefits to our people. That is governance. Okay. So there is no universal definition, from country to country it might differ. Let us say North Korea is saying whatever we are doing for our people is also governance. Similarly, South Korea is saying whatever we are doing for our people is also part and parcel of governance. So similarly, there is no specific definition. There is nothing called a universal definition. Everywhere, every country, or you can say every institution tries to give their own definition. Okay. In this whole scenario, UNDP and World Bank, they have given certain specific definitions that you can write. UNDP. Governance is exercise of economic, political, and administrative authority. Economic, political, and administrative authority to manage affairs of the government. To manage affairs of the country. Sorry, affairs of the country at various levels. At various levels. Clear? Then next, World Bank. It says that governance is a method through which power is exercised for ensuring the benefit of the people. So technically we can say that governance is nothing but ensuring constitutionalism and the idea of constitutional morality. What is constitutionalism? जल्दी बताओ, पढ़ा दो सेकंड क्लास में. Enshrined in the constitution, खत्म बात. इतना क्या सोचना. अरे whatever ideology your constitution has, if the government of the day is able to implement it for your benefit, it is constitutionalism. मैंने बताया था ना, ism क्या है, philosophy behind the constitution. philosophy क्या है, welfare state, हो गया constitutionalism. So ultimately you can say, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि that constitution governance is there to ensure the constitutionalism justify, लिखो क्वेश्चन ये लिख के आना. The governance process in the country is there to ensure constitutionalism. The governance process in the country is there to ensure constitutionalism, full stop. Justify with examples. 150 words. ठीक है, now this is your task for today, मतलब कल लेके आना है. So ultimately what governance is all about, that any governance which is ensuring constitutionalism, which is ensuring morality, is called good governance, or is called the governance in the country.
Now, what are who are the stakeholders involved? As you can see, there are three different kinds of stakeholders. One is the state. State consists of government, judiciary, legislature, executive, or government and their three subparts. इस तरह से मान सकते हैं. Then another is market. Who is market? Governance is always two-way process. Let us say if you are not asking from the government, government is not bound to give you. इसलिए कहा जाता है कि मार्केट का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में. आप लोग डिमांड करोगे और गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी. दिस इज द रोल ऑफ मार्केट. इन फैक्ट इन पोस्ट लिबरलाइजेशन वर्ल्ड 1991 के बाद मार्केट का रोल और ज्यादा बढ़ गया था, बिकॉज दिस इज वेयर द गवर्नमेंट वाज रोलिंग बैक. गवर्नमेंट रोल बैक कर रही थी 91 के बाद. क्या हुआ 91 में? एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, गवर्नमेंट ने रोल बैक किया. गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे फंक्शंस कर रही थी जो उसको नहीं करने थे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन मेंटेन करना. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया और वो टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट को दे दिया. अब ऐसे में एंश्योर हो कि जो लोग टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं दे पा रहे, प्राइवेट सर्विसेज उनको भी बेनिफिट दे, या फिर वो लोग प्राइवेट सर्विसेज से बेनिफिट ले पाए. तो वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं बार-बार कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, इसलिए आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करो. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्राई को लेके आई. Try, what is try? It is nothing but to ensure that the governance in the telecommunication sector or the benefit of the people in the telecommunication sector is happening. तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गवर्नमेंट से डिमांड की, गवर्नमेंट ने ट्राई बनाया. ट्राई ने क्या किया, प्राइसेस को रेगुलेट किया और कोशिश ये की कि चीप सर्विसेज 4G की, 3G की, 2G की लोगों तक रहे, एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग ना हो, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना हो. गेटिंग दिस? प्राइवेटाइजेशन के नाम पे मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड ना हो, क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो. व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म? They say capitalism is good but crony capitalism is bad. कैसे justify? So for example, when government supports a particular section of businessman and in return they get some amount of money which can be termed as corruption, so that kind of order can be termed as crony capitalism. देखो, capitalism is basically ensuring that the market is working on its own. This is capitalism. That government has rolled back, government पीछे चली गई, मार्केट आगे आ गई. मार्केट के आगे आने से क्या हुआ कि फैक्ट्रीज जो है वो प्राइवेट ओन्ड हो गई, इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओन्ड हो गई, स्पेस प्राइवेट ओन्ड हो गया. अब उस स्पेस में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं. कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट मिंटिंग प्रॉफिट्स. बट कैपिटलिज्म लाए क्यों थे हम? Why the government rolled back in 1991? Because so that competition can be created, and whenever there is competition, better services are given to the people. भाई पहले BSNL था, तो कहते थे भाई साहब नहीं लगता BSNL, यही था. Then ultimately Airtel आया, फिर Jio आया. तो this is how you can see competitive space created when people got various services, or you can say very cheap services with competition. But in the era of competition, usually what happens, government start promoting or giving benefits to just one single company, and this is where the idea of crony capitalism comes in. कि in the name of capitalism, government क्यों लाई थी capitalism? जिससे कि space open हो जाए, कोई भी आ सके, हर वो person जो स्पेक्ट्रम खरीद सकता है, जिसपे 500-800 करोड़ वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लगा ले. लेकिन अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ एक ही, हम नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 2010 का जो आपको 2020 का जो वो था इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें भी इसी के बारे में बात की गई थी कि कैपिटलिज्म के नाम पे क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट नहीं हो, ये गवर्नमेंट के काफी बड़ा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, सो दिस इज वेयर यू कैन सी इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म, जब गवर्नमेंट एक ही कंपनी को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लग जाए और वही कंपनी स्पेस में दिखे, सो दैट इज कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म. अब दैट कैन बी इन लिeu ऑफ समथिंग और नॉट इन लिeu ऑफ समथिंग, कोई गारंटी नहीं है. गवर्नमेंट कुछ नहीं ले रही है, ठीक है, एक कंपनी से गवर्नमेंट कुछ नहीं ले रही है, लेकिन उसी को पूरा सेक्टर, सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी को दे रही है. तो हम ये बात नहीं कहेंगे कि हाँ कि उसमें करप्शन दिखना चाहिए, बट टेक्निकली दैट अमाउंट्स टू करप्शन ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, पब्लिक का लॉस हो रहा है. एक ही सेक्टर से मोनोपोलाइजेशन हो रही है. मोनोपोलाइजेशन को हटाने के लिए तो हम कैपिटलिज्म लाए थे और फिर से हम मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं. पहले गवर्नमेंट मोनोपोली थी, अब प्राइवेट सिंगल सेक्टर या सिंगल पर्सन मोनोपोली हो रही है. तो इधर वे गवर्नेंस में क्राइसिस आ रही है. ठीक है, तो गवर्नेंस जो है वो वैसे नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए. अब क्या हुआ, एक जियो की मोनोपोली हो गई, बाकी सारी कंपनीज बंद हो गई, तो डुओपोली रह गई. टेक्निकली तीसरी कंपनी किसी काम की नहीं है, तो डुओपोली रह गई. अब डुओपोली में क्या हो रहा है, प्राइसेस रेस करे जा रहे हैं. जो प्राइस आज से 1.5 साल पहले 1 साल पहले 150 रुपए पर मंथ था, अब वो 300 रुपए पर मंथ का रिचार्ज हो गया मिनिमम. सो दिस इज वेयर यू कैन सी दैट सर्विसेज जो नीचे आनी चाहिए विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट जो नीचे आनी चाहिए विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द बैड गवर्नेंस ओवर हियर, और देयर इज नथिंग बट बैड गवर्नेंस बिकॉज ऑफ द मिस गवर्नेंस. टर्म हम यूज करते हैं मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस कुछ नहीं होता, क्योंकि गवर्नेंस पर से ही अच्छी चीज होती है. जब मैं वर्ड टर्म यूज करता हूं ना गवर्नेंस, तो वो अपने आप में आपको पॉजिटिव एट्रीब्यूट देता है, यार ये तो पॉजिटिव टर्म है. बैड गवर्नेंस कुछ नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, मिस गवर्नेंस. तो जब मिस गवर्नेंस हो रहा है उससे क्या हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है. अभी एक सेक्टर में दिख रहा है, फिर माइनिंग में दिखेगा, फिर रियल एस्टेट में दिखेगा, फिर आपको सब जगह दिखेगा. तो उसको हम क्या कहेंगे, उस टर्म को मिस गवर्नेंस. और जब सब जगह ऐसा हो जाएगा, नहीं वो तो टर्म को नहीं कहेंगे. जब सब जगह मोनोपोली हो जाएगी सिंगल सेक्टर, सिंगल पर्सन की या सिंगल कंपनी की, तो उसको क्या कहेंगे, एग्जांपल में क्या कहेंगे उसको. क्रोनी कैपिटलिज्म तो पार्ट है, वो कौन सी टाइप होती है, ओलिगार्की. सो डेमोक्रेसी विल कन्वर्ट इनटू ओलिगार्की, जैसे रशिया में ओलिगार्क्स है. तो सिमिलरली क्या होगा, एक रियल एस्टेट बैरन है, एक टेलीकम्युनिकेशन बैरन है. सो दिस इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ बैड गवर्नेंस और क्रोनी कैपिटलिज्म विल रिजल्ट इनटू ओलिगार्की. ठीक है, ये सारे टर्म्स इसलिए रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि काम आएंगे एग्जाम में लिखने के लिए. क्लियर हो गया. सो सेकंड स्टेक होल्डर इज द इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कोविड में उन्होंने डिमांड किया कि हमारे पास लोन नहीं है, अब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार ने पीएम स्वनिधि दे दिया उनको. ठीक है, या स्मॉल स्केल को नहीं देके स्ट्रीट वेंडर्स को दे दिया. स्मॉल स्केल के लिए अलग तरह की स्कीम्स निकाल दी हैं, कोविड पैकेज, रिलीफ पैकेज में अलग स्कीम्स निकाल दी थी. तो ये होता है मार्केट का रोल. देन थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस इज योर अदर इंस्टीट्यूशंस में आपके आएंगे सिविल सोसाइटी, एनजीओज, ऐसे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंश्योर करती हैं कि गवर्नेंस जो है वो हो या फिर लोगों के लिए बेनिफिट हो. अब रोल ऑफ स्टेक होल्डर यही हो गया कि टू इंश्योर दैट गवर्नेंस इज बेसिकली हैपनिंग. अब बात आ जाती है कि पॉलिसीज फॉर्मुलेट कैसे की जाती हैं. व्हाट इज द वे ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी. क्या गवर्नमेंट खुद से पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है या इन तीन स्टेक होल्डर्स, बाकी दो स्टेक होल्डर्स का कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहता है. देखो एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म. कोई प्रोवाइड करें यहाँ पे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, यू कैन से पार्लियामेंट हो सकती है और लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो सकती है ना. पॉल साइंस में सिस्टम अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वेरियस पॉलिसीज, वेरियस इनपुट्स विद रिगार्ड टू पॉलिसीज, वेरियस जो भी डिमांड्स होती हैं, दे गोज इनसाइड. इसमें क्या होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, चर्निंग होती है. व्हाट कम्स आउट इज अ प्रॉपर पॉलिसी, लॉ, देन दिस इज सेंट टू पब्लिक. अब ये क्या है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट.
ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस एनवायरमेंट में टेस्टिंग होती है, लोग इसको यूज करते हैं, इसमें कमियां निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास फीडबैक भेजते हैं, फीडबैक में जो भी पॉलिसी में इश्यूज होते हैं, जो भी पॉलिसी में क्राइसिस होती है, जो भी चेंजेस होने होते हैं, फिर गवर्नमेंट उस पर विचार करती है और फिर से उसको रीडू करती है। ठीक है, दिस इज इस टेबल को आप यूज कर सकते हो गवर्नेंस के आंसर्स में, जहां पे लगे वैलिड, हर जगह नहीं लगाना है। गेटिंग दिस? पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस, इनपुट्स, churning of laws, or you can say discussion, debate, decisions, then ultimately coming out of a policy environment में people test it, जैसे फार्म लॉ, हमारा तो चलो इनपुट फैक्टर मिसिंग था, बट ठीक है, इनपुट लिया था लोगों से, फिर लॉ बना दिया, एनवायरमेंट में आके लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही थी लॉ में, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, लोग खुश नहीं थे लॉ से, लॉ को या तो चेंज कर दिया या हटा दिया, व्हाटएवर इज द सिनेरियो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच, कि हाउ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और सिस्टम ऑफ पॉलिसी मेकिंग वर्क्स। गेटिंग दिस? तो ये जो तीनों हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े, इन तीनों का रोल होता है इस तरह की पॉलिसीज को फाइन ट्यून करना एंड अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करना। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गवर्नेंस की? Governance has to be effective, efficient. ये characteristics आपको याद रखनी होंगी, लिखना पड़ेगा. It has to be effective, it has to be efficient, then it has to be accountable. People participation is necessary. Rule of law is there and transparency is there. ठीक है, so these are the characteristics of governance. अब एक term use करते हैं हम, good governance. What is good governance? Because अभी मैंने आपसे कहा governance itself is a positive attribute. Then what is good governance? When the ideology of the constitution or the particular written document or a particular ideology with which the government functions is properly implemented on ground, then we can say that particular thing, the way of functioning can be termed as good governance, which ensures accountability, transparency, and the concept of welfare state. But ultimately governance is also the same thing. No, but that should not turn into misgovernance. देखो टेक्निकली देयर इज नो टर्म कॉल्ड गुड गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक ने इसको 1991 में पहली बार यूज किया था, 92 93 के जो रिफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड हो रहे थे वहां पे टर्म यूज किया था गुड गवर्नेंस, बिकॉज़ व्हाट वाज हैपनिंग इन द नेम ऑफ गवर्नेंस। देखा 1980s तक स्पेसिफिकली यूएसएसआर की बात कर रहे थे वो लोग, तो स्पेसिफिकली देखा जो कम्युनिस्ट नेशंस थे वहां पे इन द नेम ऑफ गवर्नेंस बहुत ही मिसगवर्नेंस हो रही थी। दे वर सेइंग कि दे आर गवर्निंग, बट यूएनडीपी के नॉर्म्स में, वर्ल्ड बैंक के नॉर्म्स में वो जो चीज थी वो गवर्नेंस नहीं थी, वो मिस गवर्नेंस थी। ठीक है, दैट वाज इवन नॉट गवर्नेंस, वो गवर्नेंस ही नहीं थी, दैट वाज काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। लोग को गवर्न नहीं कर रहे थे, अपनी पॉलिसीज डिक्टेट कर रही थी वहां पे जो भी सरकार थी। तो इसलिए दे केम अप विद आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस कि ठीक है अगर आप इसे गवर्नेंस कहते हो ना, अगर आपका यही लेवल है तो देखो एक लेवल इसके ऊपर भी है, वो है गुड गवर्नेंस। तो एसेंशियली देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड गवर्नेंस बिकॉज़ गवर्नेंस पर से हैज टू बी गुड। वही गवर्नेंस है जिसमें तीनों स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वड हैं, जिसमें क्लैरिटी, जिसमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्वड हैं, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ इन्वॉल्वड है। सो ऑटोमेटिकली दैट इज गवर्नेंस, मतलब एनीथिंग व्हिच इज प्रो पीपल इज गुड इन नेचर। लेकिन अब जो उस समय का माहौल था इसलिए टर्म लाया गया कि ठीक है ले लो भैया गुड गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस गुड नहीं है, अभी आपको गुड लेके आनी है, और फिर कुछ और नए कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए। बोले गुड गवर्नेंस वो होगी जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात करेगी। आपकी गवर्नमेंट कर रही है, रशिया से पूछा, मतलब लोगों से पूछा, नहीं कर रही है। नॉर्थ कोरिया से पूछा, कर रही है, नहीं कर रही है। सेफ्टी नेट्स हैं आपके पास, क्या गवर्नमेंट आपको कुछ सेफ्टी पॉलिसीज देती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देती है, नहीं देती है। इंस्टीट्यूशंस आपके वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेंथन नहीं काम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली आपकी कंट्री में गुड गवर्नेंस नहीं है। तो इस तरह से गवर्नेंस 2.0 को आप कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस बन गया, जिसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिए गए प्रीवियस से। है वर्ल्ड बैंक में, यूएनडीपी वर्ल्ड बैंक दोनों के पेपर पब्लिश हुआ था। अब क्या हुआ एग्जैक्टली कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर दी। हमने क्या देखा, ये गवर्नेंस था कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई गुड गवर्नेंस की। सो दे आर सेइंग कि लुक योर पॉलिसीज आर, योर गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी इन नेचर, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग विद यू, यस वी आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, यस फार्म लॉ अच्छे नहीं थे, सरकार को बोल के हटवा दिया, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट, सरकार ने बता दिया कि हम तो एमएसपी हटाना नहीं चाह रहे थे, हम उसको रिवैम्प करना चाह रहे थे, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन द नेचर, हमें पता था कैसे वर्क करेगा। रिस्पॉन्सिव, जैसे ही बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राई हुआ गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर लिया। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटी बेस्ड मतलब सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, rule of law, and then ultimately consensus oriented. Getting this? So this is how you can see that governance 2.0 can be termed as good governance with those added features. हमने क्या किया, ये features उसमें ऐड कर दिए और हो गया ये good governance. क्लियर हो गया? अब बात आ जाती है कि क्राइसिस क्या है फिर। इश्यूज के डायमेंशंस है वैसे तो क्या क्या, पॉलिटिकल, लीगल, जुडिशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्लाइड्स मिल जाएंगी। देयर इसके इश्यूज इन इंडिया विद रिगार्ड टू गवर्नेंस। अब इश्यूज बताओ एक एक। अगर आपसे मल्टी फ्रंट पे इश्यूज पूछे जाए, हाउ यू आर गोइंग टू रिवैम्प द गवर्नेंस प्रोसेस इन इंडिया एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट गवर्नेंस इन इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ, कौन कौन से इश्यूज हैं? देन देखो इसको ब्रेक करो, पॉलिटिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, जुडिशियल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। वो जो हम रोज पढ़ते हैं विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल इश्यूज, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करती है विद द विल ऑफ डिमांड्स ऑफ द पीपल। देन अल्टीमेटली अकाउंटेबल नहीं है कई जगह, गवर्नमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, लीगल के केस में जुडिशियल डिलेज है, ठीक है, जस्टिस डिलीवरी या तो मिल नहीं रही है या फिर डिलेड है। पॉलिटिकल को भी और ब्रेक कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, एक और एक पंचायत लेवल। प्रॉब्लम सेम आएंगी तीनों जगह पे, प्रॉब्लम्स आएंगी कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। देन जुडिशियल अगेन, लीगल जुडिशियल सेम हो सकता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक विद रिगार्ड टू दी inflation in the country, government is not responding, ठीक है। poverty is like joblessness is increasing, response नहीं है कोई गवर्नमेंट का, कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। देन उसके बाद poverty is increasing, मल्टीडायमेंशनल poverty में पीछे जाते आ रहे हैं, उसमें कुछ खास हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव तो आपका हो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सेम रेंटिपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, रिजिडिटी ऑफ वर्क है, ठीक है। सो दिस इज रिजिडिटी ऑफ रूल्स है। सो दिस इज हाउ दीस आर द इश्यूज एंड हाउ टू एड्रेस देम। सो व्हेनेवर, देखो याद रखना जब भी आपको कुछ एड्रेस करना है विद रिगार्ड टू द गवर्नेंस प्रोसेस, आप हमेशा चार फैक्टर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी, दैट मींस रोल ऑफ लॉज, रूल्स, देन वेलफेयरिस्ट मेजर्स, रोल ऑफ स्कीम्स, सिटीजन चार्टर एंड देन सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, ठीक है। स्टैट्यूटरी में क्या क्या आ गया आपका, आरटीआई एक तरह से रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए आरटीआई हो गया, ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई आ गया। देन वेलफेयरिज्म में नरेगा आ गया। देन सिटीजन चार्टर अपने आप में एक सेटअप आ गया जो इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एफिशिएंट गवर्नमेंट, इफेक्टिव गवर्नमेंट एट ब्यूरोक्रेटिक लेवल और दी वर्किंग ऑफ दी वेरियस इंस्टीट्यूशन। एंड देन सोशल ऑडिट एक अभी नया ऐड कर सकते हैं विद रिगार्ड टू दी ट्रांसपेरेंसी। सोशल ऑडिट पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था पॉलिटी में। व्हाट इज सोशल ऑडिट? Audited by the people. So the feedback which the civil society gives with respect to the schemes or whatever law. और बेटर कोई, व्हाट इज सोशल ऑडिट? अच्छा, कौन से सोशल ऑडिट का जो मैकेनिज्म है सबसे पहले इंडिया में लाया था, नरेगा, ठीक है।
उसके बाद मेघालय ने एक लॉ पास किया 2020 में, जिसमें सोशल ऑडिट को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। सोशल ऑडिट कोई भी स्कीम जब क्लोज होगी, मतलब एनुअल उसका क्लोजर होगा, स्कीम के जो भी खर्चे हुए पूरे साल भर के, जो भी फंड्स आए, जितना फंड्स खर्च हुआ, पंचायत या जो भी उसकी गवर्निंग बॉडी है, जो भी उसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, जब वो अपना लेखा जोखा ऑडिट सबमिट करेगी तो उसके साथ एक सोशल ऑडिट भी सबमिट होगा। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉमर्शियल ऑडिट। ठीक है, जो आपके कॉमर्स में ऑडिट होते हैं उससे डिफरेंट है। कॉमर्स ऑडिट इज ऑल अबाउट नंबर्स, है ना। 100 रुपये आए, 80 खर्च हुए, अकाउंट में 20 रुपये पड़े हैं, तो इसका मतलब सब ठीक है, वो जो सीएजी करके दे देती है। ठीक है, सीएजी ये नहीं देखते थे। सीएजी के केस में आता है ना 2013 में कि लॉस हुआ है 1.5 लाख करोड़ तक का लाइसेंसिंग पॉलिसी में, स्पेक्ट्रम पॉलिसी में लॉस हुआ। तो बाद में जब सीएजी से पूछा कि कहाँ था वो लॉस, तो बोले वो प्रोस्पेक्टिव लॉस था, इतना पैसा और ज्यादा कमाया जा सकता था स्पेक्ट्रम को हाई प्राइस पे बेच के। अब गवर्नमेंट तो चली गई थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के लोगों ने बताया कि एक्स गवर्नमेंट ने कि भैया जब कोई स्पेक्ट्रम खरीद ही नहीं रहा था हमसे महंगे दामों में, तो हम कैसे बेचते, हमें तो सस्ते में बेचना पड़ा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर ऑडिट कमर्शियल। अब एक नया टर्म आता है सोशल ऑडिट। इसमें पीपल नहीं बोलेंगे, टर्म हम यूज करेंगे स्टेक होल्डर्स, बिकॉज इन दिस all the stakeholders are involved. They are the government functionaries, they are the civil society and the beneficiaries जिनको बेनिफिट मिला। लेट अस से इन टर्म्स ऑफ नरेगा। नरेगा का सोशल ऑडिट कैसे होता है कि अभी जब बनोगे आप लोग ऑफिसर, आपको पता चलेगा कि लेट अस से मंथली आपको अकाउंट सबमिट करने हैं या एनुअल सबमिट करना है, तो उस दिन पंचायत लगेगी। पंचायत में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, दोज हु आर रिलेटेड टू नरेगा, योर बीडीओ एंड अलाइक काइंड ऑफ पीपल। देन सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, आसपास जो एनजीओस काम कर रही हैं वो होंगी, एंड देन वो लोग होंगे जिनको जॉब मिली है। तो ऑडिट कैसे किया जाएगा, सोशल ऑडिट ऐसे किया जाएगा कि लिस्ट पड़ी जाएगी कि आपने 200 लोगों को जॉब दिया। पंचायत का मस्टर रोल कहता है, सरपंच के पास जो मस्टर रोल होता है जिसमें नाम लिखा जाता है जिसको नौकरी मिली, 200 लोगों का नाम है, 200 लोगों को पूछा जाएगा, सबको बोला जाएगा हाथ खड़े करो, आपको मिली, आपको मिली। हो गया क्रॉस चेक कि हाँ आपका नाम भी और आपको मिली भी जॉब। कितने रुपए मिले, इसमें लिखे 200 रुपए, तो पूछा जाएगा कितने मिले, बोलेगा 200 रुपए मिले, हो गया क्रॉस चेक। सिविल सोसाइटी से पूछा जाएगा आपने क्या क्या इनके लिए किया। ठीक है, लेटर से आपने कोई यहाँ पे लेकुना देखा, लेकुना देखा तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया। गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि आप ये लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आए पूरे साल में, हाँ लेके आए, कितना आपने फंड एलोकेट किया था, इतना किया था, क्या आपने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, हाँ कर दी, नहीं करी तो क्यों नहीं करी, और करी तो कैसे करी। सो ये पूरा का पूरा जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट, एंड दैट विल बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री या जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास चला जाएगा। तो दो ऑडिट चलेगा, एक तो आपका होगा कमर्शियल ऑडिट जिसमें बताया 100 रुपए आए और 80 खर्च हुए और 20 रुपए अकाउंट में पड़े, हो गया ऑडिट। एक हुआ कि 80 खर्च तो हुए, लेकिन उस 80 से हुआ क्या, कोई चेंज हुआ सोसाइटी में, लोकल लेवल पे आपने जो 80 रुपीज स्पेंड किया वहां पे, डिड यू नोटिस एनी चेंज, डिड यू विटनेस एनी चेंज, पीपल गॉट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। 80 रुपए खर्च करके लोगों को फायदा हुआ, नहीं हुआ। 80 रुपीज स्पेंड करके क्या आप क्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, नहीं बना पाए, तो अगली बार से फिर 200 रुपए खर्च करना। So this is how you can see the development needs of that particular panchayat can also be fulfilled. So this is called the mechanism of social audit. ठीक है, टेक्निकली सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ नहीं है जो सोशल ऑडिट को इंश्योर करता हो या फिर कंपलसरी करता हो। सिर्फ नरेगा में एक कॉन्सेप्ट आया था सोशल ऑडिट, दैट एवरी अकाउंट ऑफ सोशल ऑडिट, एवरी अकाउंट ऑफ पंचायत ऑफ विद रिगार्ड टू नरेगा शैल हैव अ सोशल ऑडिट एनुअली। तो नरेगा के लॉ में लिखा हुआ है, उसके एक्ट में लिखा है कि सालाना आपको एक सोशल ऑडिट अपनी स्कीम की पंचायत लेवल पे कराना है। ठीक है, तो अगर जितनी पंचायत हैं सब सोशल ऑडिट अपना अपना करेंगी। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, इसलिए मेघालय ने क्या किया 2019 और 20 में 20 की जनवरी में एक लॉ लेके आती है और ये कहती है कि क्या कहते हैं सोशल ऑडिट एक्ट ऑफ मेघालय सोशल ऑडिट एक्ट उसका नाम है। और आइडिया इसमें यह है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, वो बिना सोशल ऑडिट हुए फाइनल क्लोजर उनका एनुअली नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें अच्छा ये क्यों बता रहा हूं बात कि आपको कहीं पे सॉल्यूशन लिखने हैं विद रिगार्ड टू इंप्रूविंग ऑफ द गवर्नेंस प्रोसेस। आप बता दो कि सोशल ऑडिट का लॉ होना नेसेसरी है कंट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लाती इस लॉ को, जब ये प्रूवन है नरेगा में अच्छा वर्क कर रहा है, मेघालय से इंप्लीमेंट कर चुकी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के लॉज क्यों नहीं लाती, इस तरह के मैकेनिज्म क्यों नहीं लाती, बिकॉज दीस काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिवनेस एंड पार्टिसिपेशन। ट्रांसपेरेंसी भी हो गई, अकाउंटेबिलिटी भी हो गई गवर्नमेंट की, लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो गया, सिविल सोसाइटी भी साथ में जुड़ गई। सो दिस इज द बेस्ट मॉडल ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल द स्कीम्स और यू कैन से सोशल वेलफेयर स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड टू देयर इन देयर बेस्ट स्पिरिट। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट एंड व्हाई सोशल ऑडिट इज इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू योर सोशल सेक्टर स्कीम्स। देन नेक्स्ट, अब यहाँ से आपके प्रहार के नोट्स हैं तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। उसमें जो जो बोल्ड वाले पॉइंट्स हैं ना बस वही पढ़ना, बाकी छोड़ देना। ये जो आपके देखने के लिए विजिबिलिटी के लिए रखे हैं मैंने इसमें। अब नाउ कम्स पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी?